Okay. So this will be root 7. Did you understand? So what is answer? 5 or B. root C 7. of So Root here 7. here we have to consider both the conditions. Okay. Yes. Hey, where is my cursor? It is here. Karthik and Praveen started cycling from some point A. Karthik travels due east and Praveen travels due north. Okay. After 1 hour, Praveen covers 12 kilometer, Karthik 5 kilometer. How far? यार ये देखो, this is your point A. ठीक है, कार्तिक किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है और प्रवीण किधर गया बेटा? नॉर्थ में गया. आफ्टर 1 आवर ये 12 किलोमीटर का Sir, option C. ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, एंड दिस इज राइट एंगल. सो 144 प्लस 25, 144 plus 25, that is 169. 13 kilometer. So this is 169 is the 13. square root of 13. Yes. Correct. Did you understand? Yes, Yes, sir. sir. चलो आप देखते हैं ये. 1. Number of circle that can be drawn through 3 non-collinear point is. Bolo, bolo, bolo. How many circles you can draw from 3 non-collinear points? 3 circles. 2. circles. Only 1 circle. There is a theorem in 9th standard property. 1 and only 1 circle can be drawn through 3 non-collinear points. क्या है statement? 1 and only 1. 1 and only 1 circle can be drawn through 3 non-collinear points. Okay. Hey, now where? Yeah. A tangent AB at point A of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at point B such that OB is 12. Length of AB we have to find out. चलो पहले हम लोग बनाते हैं एक सर्कल. ये है सेंटर, बराबर. My dear, a tangent AB at a point A of a circle of radius 5 meet a line through this at O. My God. देखो ये है एक tangent. ये tangent है. This is passing through which point A? बेटा ये सेंटर है. सेंटर से एक लाइन जा रही है, वो मिल रही है tangent को at point B पर. Okay. And this radius टेढ़ा हो गया. This radius is given 5 centimeter and this is 12. Option D, sir. 144 minus 25. 119. 190. Yes. So this will be under root Option D. 1. Correct. Now, if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 70 degree, now you have to find out POA equal to yesterday's question. This is your center. These are the tangents from point P to A and this is B. बराबर है.
Which angle you need? एक मिनट बेटा. They are inclined. Inclination is given how much? 70. देखो हाँ 55 degree. ये कितना आएगा 110. कल की तरह है, थोड़ा सा अलग किया है. You need this angle, so that will be half. Option B. So this is Option 55. B. 55. 5 degree. Okay. TP and DQ are two tangents to a circle with center O. ठीक है. POQ is 120 is equal to, चलो इस साइड बनाते हैं हम. This is your O. Here is T. This is P. This is Q. POQ. Oh, this is 120. You need PTQ. How much? 60 degree. 60 degree. That Option very C. good. Option C. Yes, correct. Very good. Very good. In this figure, ABC is a triangle and their sides are tangent to the circle at point PQR. AQ is given, PC is given, and this one BR is given. Perimeter is required. No? हो गया काम खत्म. This is 3. This is 7. क्यों? ये दोनों equal. ये इससे equal. ये इससे equal. Tangent drawn from exterior points are equal in length. तो ये इससे equal, ये और ये equal, ये और ये equal. This is 10. This is 7. This is 11. तीनों को ऐड करो कितना आया? बोलो. 28. 28. Option B. That is equal to 28 centimeter. This is perimeter of triangle. Yeah, 28 centimeter. समझ में आया? Yes. If a tangent to the circle with center O at point A, OP is 10. This angle is 30. Then the radius of the circle. Oh, okay, let's draw it. Center is O. AP is tangent to the circle at A. ठीक है, ये A से P. Tangent. बैकग्राउंड ऐप के साले ये बो इंस्टा पर डाउनलोडिंग करते हैं. Hello. Yes, beta. This is 30 degree. This is 90 degrees. So then it will be 60 degree. Option You C. need- 5 centimeter. You need radius. Radius is what? 5 centimeter. 5 Yes, centimeter. half of hypotenuse. That is equal to 5. Radius is opposite to 30 degree now. Okay. Now, listen everyone. But in the given figure, AP is equal to PV. These two are equal. Then, then AC is equal to AB. AC is equal to AB. AC is equal to BC. D option. अरे यार ये Sir, देखो. option D. AQ is equal to ये- QC. रुको. AQ is equal to QC. ना सुनो, ये इससे इक्वल है. ये देखना बेटा, ये देखना, ये इससे इक्वल है. AQ है ना, इतना छोटा है, QC इतना बड़ा है. ऑब्जर्वेशन देख के ही समझ में आ रहा है. देखो, ये दोनों इक्वल है, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है. अभी सुनो हाँ ध्यान से. व्हाट इज योर AC?
AQ plus QC. AQ is equal to BR. क्यों? बोलो why? So AC is equal to AC is Sir, equal AC to is equal to BC. BC. एक AQ Option B. इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है. That's why these two are equal. And QC is equal to CR. Tangent segment theorem. That Yes, is sir. equal to BC. AC is equal to BC. This is BC. Yes, sir. okay. आता इकडे बघा, आपण बघूया. In figure, a circle touches the side DF of triangle, okay, H at H and touches the line ED, ठीक है, at and ED and EF at point K and M, that is given. EK, this total length is 9, that is given. Find the perimeter of this triangle, ना? ठीक है, चलेगा. ये 9, टोटल 9 है ना. अभी सुनो. हाँ Yes, बेटा, sir. मेरे को कलर चूज करने दो. ये ग्रीन कलर दिखेगा. यस, ये ना ग्रीन दिख रहा है. ग्रीन Yes, sir. Yes, ये sir. किससे इक्वल है? EM. इससे इक्वल है. Yes, तो ये दोनों भी 9 होंगे. yes, अभी ध्यान देना बेटा, ये पार्ट है नहीं, ये पार्ट इससे इक्वल है. yes, ये पार्ट इससे इक्वल है. है कि नहीं? yes, sir. Yes, ये जो है ना, ये रेड पार्ट, ये रेड, Yes, sir. वो इससे इक्वल हो गई. इधर का रेड पार्ट इससे इक्वल हो गए. बेटा देख, इधर से यहां तक 9 था. Sir, 18 आएगा. Yes, sir. 18 आएगा. वेरी गुड, Option वेरी A. गुड. तो यहां से यहां तक 9 हो गया ना. Yes, sir. ED plus DH is equal ये to देखो, 9. ये 9 हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक 9 हो गया. EF और HF 9. Then Yes, plus 9 plus 9 is plus 18. 9 is equal to 18. मस्त क्वेश्चन था. देखो, the side ABBC CA of a triangle ABC touches a circle दिया है, PA दिया है, CP दिया है, AC दिया है. Then the length of BC you need. बेटा ये कितना है? 4. 4 centimeters. 4 ये 4 हो centimeter. गया, Yes, तो ये sir. 7 हो गया, तो ये भी 7 हो गया. ये 3 है, तो ये भी 3 हो गया. टोटल 10. yes, 3 Yes, plus sir, 7 10. is equal to 10. Option B. You understand? Yes, Yes, sir. sir. आज बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है हमारा क्वेश्चन. देखो, in figure, if angle is given 60, this angle is 60, you need AOC. चलो बताओ कितना आएगा, आप लोग बताओ. 60. कैसे? How come? Inscribed by Sema. बोलो बोलो. How come? Sir, ABC is an inscribed angle of arc AC. अरे ये लाइन कहाँ से आ गई यार? Sir, 30. श्रेया, किसी ने, और एक बच्चे ने अभी कुछ आंसर दिया, सुना ही नहीं दिया. किसने दिया बताओगे बेटा? Sir, ABC is an inscribed Sir, 30. arc of arc AC. It's an inscribed angle of arc AC. किसी लड़के ने एक So, आंसर दिया था. किसने दिया था? प्लीज कैन यू टेल मी? Sir, मैंने.
क्या नाम है बोलो ना। सर आदर्श। हाँ आदर्श। ओके देखो देखो सुनो अभी ध्यान से, ये 60 है तो ये आर कितने का होगा बोलो। 30. आई 120. 120 होगा। 120 का होगा। अरे बेटा इस 180 आर से का minus हाफ ये होता है ना इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये आर का हाफ ये होता है Semi मतलब circle. हाँ ये 120 तो ये कितना होगा 120 क्यू सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। Yes sir. ओके समझा। Yes sir. ओके चलो ये देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q is 5 then the value of x is required। तो क्या करोगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। Distance formula. हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 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 minus minus x1 x1 the x1 whole the square plus y2 square minus plus y2 y1 the minus y1 the whole square. yeah, y2 minus y1 the whole square is equal to 5। बेटा ये 3 आया, Yes sir. 3 का स्क्वायर 9 हो गया। Yes. ये कितना आया तुम्हारा, x माइनस 2 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 25 आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 minus 9 that is 16, so x minus 2 is equal to 4, x is equal to 4 plus 2 that is 6, 6. Option B. option B। okay now if Yes point sir. this and this are collinear then x, hey beta when 3 points are collinear, आपको इसका पता है क्या कुछ कॉन्सेप्ट कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, फिर बताऊं मैं। सर आई बता। थिंक तो बताओ। सिलेबस से निकाल दिया गया था, चलेगा कोई बात नहीं, हम लोग सब पढ़ेंगे। क्यों पता है बेटा, बिकॉज whenever you have to go for any kind of entrance exam, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेई और नीट वाली, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सपोज आपको कोई यूपीएससी एग्जाम देना है, एमपीएससी एग्जाम देना है, कोई भी है कि नहीं, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देना है, ठीक है, उसमें तो सब आएगा। जब आप अप्लाई करोगे तो सब क्वेश्चन आने वाले, ये थोड़ी बोलेगा कि हमारा ये इस ईयर में हमें ये डिलीट कर दिया था पोर्शन से, दिस वाज नॉट टॉट टू अस, ऐसा कुछ नहीं, सब आने वाला है, डोंट वरी। तो मैं आपको बताऊं, एक ये याद रखना कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन slope of lines are equal। अब ये क्या है, स्लोप क्या है, मैं स्लोप का भी कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, क्यों, बिकॉज दैट इज देयर इन योर 11th स्टैंडर्ड एंड एज वेल एज व्हेनेवर यू विल सी फिजिक्स। फिजिक्स में आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो बोलेंगे स्लोप फाइंड करो, फिर बोलोगे अरे स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं उसका भी कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। बेटा स्लोप क्या होता है, ये सपोज एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन बेटा ये क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है, Yes sir. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बेटा ये जो पार्ट है ना इस साइड का, ओरिजिन के किस साइड में, राइट साइड में, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ओरिजिन के लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। समझा? Yes sir. ओके नाउ ये एक लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना एंगल बनाती है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, याद रखना।
अब स्लोप का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला है। अब बोलोगे सर नहीं समझा ना, कोई बात नहीं, अभी देखो, मैं एक पॉइंट इधर लिया इस लाइन पे, बराबर है, एक पॉइंट इधर ले लिया मैंने इस लाइन पे। सपोज दिस पॉइंट इज योर x1 y1, this point is x2 y2, you need slope, आपको क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये किससे पैरेलल है, इससे, थोड़ा मेरा बनाने में गड़बड़ हो गया बेटा, है कि नहीं, ये लाइन देखो स्ट्रेट नहीं बनी, तो पैरेलल, ये थीटा आ गया, ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट एडजेसेंट किधर आता है, tan में आता है ना। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आपको आएगा y2 माइनस y1, ये जो दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसका है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, हाँ याद रखना। तो दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट स्लोप। अब देखो, इसको लिया मैंने a, इसको लिया b, इसको लिया c, अभी इधर क्या लिखा है, कोलिनियर देन द स्लोप ऑफ लाइंस आर इक्वल, मतलब स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, BC, ठीक है। AB क्या है, अच्छा AB का स्लोप निकालना है, कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला बताया ना मैंने, yes sir, देखो इसका y2 क्या है, 3x है, 3x, 3x 3x minus 2x, माइनस, अरे शाबाश, वेरी गुड बच्चा, y2 माइनस y1 हो गया, x2 माइनस x1, 3x minus 6. या वेरी गुड। अब BC में देखो y2 कौन है, 1 है, x2 कौन है, 3 है, दिस इज x1 y1, चलो बताओ, 1, 1 minus 3x. हाँ, then upon 3 minus 3 3x, minus 3 minus Yeah. 3x, हाँ वेरी गुड, ओके। अब क्या करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट इज दिस, x sir x, अपॉन x upon 2x, 2x. 1 माइनस 3x 1 minus upon 3x 3 upon minus 3 minus 3 3x, minus बेटा ये और ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 into 1 minus 3x, so therefore 3 minus 3x is equal to 2 minus 6x, ये इधर आएगा प्लस होगा, so 3x आ गया, 6 minus 3 3 आ गया, बेटा ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, 2 minus 3 that is 1, this implies that x is equal to 1 by 3, did you understand, yes sir, कोई डाउट है कहीं पर, किसी को no भी? sir, No, पूछो sir. अंदर। अभी हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बेटा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y axis, the coordinate of a point on y axis equidistant from this and this are, अब बताओ करके दिखाओ, चलो अब करके दिखाओ, आपने नहीं किया तो मैं जरूर करेगा, ये बताओ मुझे, चलो डू इट, डू दिस वन, yes everyone try it, I'm waiting for you, yes, are you trying, yes my dears, yes sir, please do it.
suppose this point is A and this point is B. Yes. Find किया? Yes. Yes, sir. क्या है आंसर? Sir, option C, 0, -2. Okay, let's see. बेटा रिक्वायर्ड पॉइंट कौन है? P है. तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा मुझे बताओ. X Because और Y. point is, see, करेक्ट है बेटा, आपका आंसर करेक्ट हो सकता है, आप टेंशन मत लो बेटा. पॉइंट इज ऑन y एक्सिस ना. इफ द पॉइंट इज ऑन y Yes. एक्सिस इट्स Then x X will be कोऑर्डिनेट इज 0. 0. बराबर है. इधर अपन ने क्या लिखा? y लिख लिया. 0, ठीक है. y. हाँ, अभी a. So what is given? PA is equal to PB. That P is equidistant from A and B. तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों साइड स्क्वायर रूट आएगा ना, मैं हटा दिया, गायब कर दिया. बिकॉज मुझे लिखना नहीं है, बोर्ड में थोड़ी लिखना है, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना है. ठीक है. सो मैंने उसको गायब कर दिया, सीधा स्क्वायरिंग करके लिख रहे हैं. सो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? दैट इज दिस माइनस दिस, सो दैट इज 0 minus of minus 5 -5 the whole square. whole square. Then plus यहाँ पर क्या आएगा बेटा? y minus Y of -2 the Y. whole square. yeah is equal to 0 -3 the whole square. oh yeah, very good. So that is 0 minus 3 the whole square and ये whole square plus Y -2 the whole square. minus 2 the whole square. correct है बेटा. ये क्या आएगा? 25 Yes, sir, plus 25. and Plus y y square. plus 2 the whole square. ऐसा मत करो ना. y square plus 2y plus 4 लिख लो, चलेगा. and this is 9. this is what? y square minus 4y. Minus 4y plus 4. अभी देखो सुनो, y square cancel, 4 and 4 cancel. ये -2 को इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? 6y हो जाएगा. एंड ये इधर आएगा, सो 9. हमने कुछ तो गड़बड़ तो नहीं? अरे कोई किया ना, इधर 4 है बेटा, 4 है, सॉरी. स्क्वायरिंग Yes, sir, किया ना. 4, दिस इज 4, तो ये 8 आ जाएगा. 4 plus 4 8. and this is minus 25 which is equal to minus 16. so y is equal to -2. यहाँ पर क्या आ गया वैल्यू? दैट इज 0 0, -2. 0, -2. very good. चलो, if this point is equidistant from this and this, then what relation you will get? चलो फटाफट बताओ मुझे सॉल्व करके. हम ही कर डालें. चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे आर इक्विडिस्टेंस, सो स्क्वायर रूट को गायब कर देते हैं. x -7 square y -1 square must be equal to x -3 square plus y -5 square. बेटा ये क्या आएगा? x square minus 14. सर ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला के वैल्यू से कर सकते हैं क्या? क्या हुआ? सर विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला वी शुड फाइंड दिस क्वेश्चन. ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है ना? तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूँ बेटा. यहाँ पे रूट है ना, वो रूट नहीं लिखा मैंने. देखो ये दोनों साइड में रूट लिखना था ना. ओके सर, नो प्रॉब्लम. हाँ, रूट नहीं लिखा मैंने. क्या किया? स्क्वायरिंग कर दिया ना डायरेक्टली. 49. this is y square minus 2y plus 1. this is your x square minus 6x plus 9. and this is y square minus 10y plus 25. बेटा देखो, y square cancel, x square cancel. this is 14 माइनस, तो ये प्लस होगा तो -8x आ गया. 8x ये -8y. ये इधर आएगा तो +8y आ जाएगा. ठीक है.
and this is 50. 50 है, 50 minus 50 ना, ये इस साइड जाएगा 50, तो minus 25 16. and 9 minus 16. Yes sir, minus 16. हाँ, तो बेटा 8 से डिवाइड कर लो, minus 8 से, तो x X minus Y is equal to 2. X minus y is equal to 2. yeah. Oh my god. सर इसको रीअरेंज करेंगे अभी. रीअरेंज करेंगे, यस करेक्ट. Yes sir. तो Yes, x Y equal to X minus minus 2 2. is equal to y, है ना? Yes sir. Oh, Option A. correct. Yes sir. हमने कहाँ तक किया? आगे देखते हैं. The distance between this point and this point is, चलो distance formula से find कर डालो. 5 plus 1 6 का स्क्वायर डायरेक्टली करेंगे है कि नहीं. Then minus 8 का स्क्वायर, that is 36 plus 64 is equal to 100 is equal to 10. Option B. Option B. P is midpoint of segment AB. Then coordinate of P are. चलो बताओ. Sir, midpoint formula. Yeah, very good. Midpoint formula क्या है? That is x comma X is y. equal x1 plus x2 upon 2. What is y1 this? plus y2 upon 2. बराबर. So this ये आ जाएगा तुम्हारा -4 plus 6 upon 2 and this is 2 plus 2 upon 2. What is answer? Tell me fast. A. 1. -1. ऐसे say -1 बेटा. This is what? 6 minus 4, that is 2. 2 upon 2 is 1. 4 upon 2 is 2. Okay. 1 comma First of 1 comma. One First comma A, two, option A. option A. Option That A. is option A. Did you understand? Yes sir. Yes. चलो देखो. 7. P divides the line segment AB where A is given in the ratio 2:1. We need B. बताओ कैसे निकालेंगे यहाँ पे. Sir, बना midpoint formula. ना रे बेटा. ट्राइसेक्शन फॉर्मूला Can formula. mx Section. plus Sorry, sir. nx1 upon m यहाँ plus पे n, ये वाला. ये 2:1 है ना. यहाँ पर क्या दिया है? -4 and 6 is given and this is given A -6 and 10. We need B. बेटा ये जो पॉइंट आएगा ना -4, 6 will be is equal to x comma y. हम लोगों को क्या करना पता है? देखो m कौन है? This is m and this is n. m x2, इसको ले लेते हैं x2 और इसको लेते हैं बेटा y2. बराबर. तो m x2 2x2, अरे यार 2x2 n x1, so 1 into -6 upon 3 comma m y2, so 2y2 नीचे लिखता हूँ बेटा. 2y2 plus 1 into 10 upon 3. अब देखो कंपेयर करेंगे हम लोग. ये आपका ब्रैकेट है. Why this is not writing properly? ठीक है. देखो ये आ जाएगा तुम्हारा -4 is equal to 2x2 -6 upon 3. तो ये कितना आएगा बेटा? -12. Yes sir. x2 -6, ये +6 हुआ तो -6. तो x2 is equal to क्या आ गया? -3. कौन सा ऑप्शन है पता है? डी. अब बोलोगे क्यों? उधर ही Yes तो sir, x. option D. हाँ, एक ही वैल्यू. ऐसा देखो, अगर मेरे को ये -3 दो जगह दिखता तो मैं क्या फाइंड करता? y2 भी फाइंड कर लेता. चलो Yes, y2 sir. भी फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 6 is equal to 2y2 plus 10 upon 3. 18
minus 10 is equal to 2y2. This is 8 is equal to 2y2. है कि नहीं? So Yes, sir. y2 is equal to 4. 8/2. तो दोनों नहीं, अगर आपका फर्स्ट आंसर भी मैच कर गया ना, जैसे -3, अगर वो दो जगह होता तो हम फाइंड करते थे, एक ही जगह है तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। अभी देखो यहाँ पर ये क्या है, रुको तो थोड़ा ऊपर लूंगा तो फिर लिखने में भी आसान रहेगा। 10 8 है ना, 7 तक हो गया ना। APB are collinear in the ratio, in which ratio P divides the segment AB? In which ratio? We need ratio. Huh? So let it divide in the ratio m:n. है कि नहीं? Yes, sir. नहीं, तब फिर गड़बड़ी क्या आएगी पता है सर x के y के कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं है। हाँ दिया है, चलो देखते हैं बेटा। 11 इज इक्वल टू, ये ना ये 11 कौन सा, ये दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, m x2 क्या है, 9 है, प्लस n x1 क्या है, 15 है, अपॉन m प्लस n। सिर्फ एक लेकर के करने का, दोनों लेने की जरूरत नहीं। अब देखो कैसे करेंगे। 11 m प्लस n इज इक्वल टू 9m प्लस 15n। Therefore 11m minus 9m is equal to 15n minus 11n। ये देखो इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले गए। Yes, sir. This is what 2m 4n। So this implies that m is equal to 2n। Yes, 1x. sir. m upon n is equal to 2/1। Sir, option A. Option A. ऑप्शन ए, Option A. ठीक है नहीं, समझ में आया? Yes, sir. The line segment joining this and this divides y-axis in the ratio। हो। अब देखो y-axis को दिया है ना बेटा, so point on y-axis क्या होगा? 0. हाँ, it will x be 0 0, y। मेरे को y नहीं लेना है, मेरे को x लेना है, एक वैल्यू दिया है ना, वैसे ही करना है। So 0 is equal to m x2, what is x2? 1 plus n x1 upon m plus n। ये 0 हो गया। So this is equal to, ये देखा बेटा ये मल्टीप्लाई हुआ 0, so m minus 3n। so ये इधर ले जाओगे, so ये आएगा तुम्हारा क्या, 3n is equal to m। So m upon n is equal to 3/1। समझा? Option C. Okay. Now the ratio in which x-axis divide the segment joining this, hey, this is homework for you। x-axis ना, तो Yes, x, sir. 0, तो आप किसको कंसिडर करोगे? 0 वाले को। चलो कर ही लेते हैं। 0 is equal to बेटा m y2 minus 3 plus n y1 is 6 m plus n, that is 0 is equal to minus 3m plus 6n। ये इधर गया, 3m is equal to 6n,
m is equal to 2n. So this implies that, यहाँ पे लिख देता हूँ m 2 is to upon 1. n is equal to 2 upon 1. Option D. Option D. Now, if the centroid of the triangle are this, so x and y, you have to find out it. Do you know what is centroid? Centroid formula. Yeah, centroid formula. Correct. What is centroid formula? X is X1 equal to plus x1 x2. plus x2 plus x3 upon 3. Y equal to Yes. y1 plus y2 plus y3 upon 3. बराबर है. तो 6 ये centroid दिया है ना, centroid ये दिया है ना. So 6 is equal to, very good, very good, 7 plus y plus 9. 7 plus y plus 9 upon 3. तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 18. 18 माइनस ये कितना है? 16. तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू y. y का वैल्यू 2. x कॉमा y ना, Option B. Option B. b. ये याद रखना, ठीक है? हो गया काम Yes, खत्म. sir. ये आपको फाइंड करना है दूसरा तो कर सकते हो, x भी फाइंड कर सकते हो. बताओ कैसे आएगा x का वैल्यू? यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे. दैट इज, एक मिनट, उस दूसरा कलर लेते हैं अपन, ब्लैक कलर. चलो, ये तुम्हारा है x माइनस 6 प्लस 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3. ये 9 आया. ये बेटा कितना Yes, आएगा? sir. 4. 9. So x is equal to, this is 9 minus 4, that is equal to 5. तो x का वैल्यू 5 हो गया. फिनिश्ड. ओके. Yes. तो clear. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा, अलजेब्रा के भी लाऊंगा. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, Okay, एंजॉय sir. योर डे. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Bye, sir. Sir.